Hello students, in the last lecture we started with economics chapter 1 development. We discussed the goals of individual or personal development and also we discussed the goals related to the national development. Now today we are continuing with the same chapter and I will explain you the remaining part. So please turn to page number 8. How to compare different countries or states. Students, when we compare different things, they could have similarities as well as differences. Yes, this is true. Two states may be same and two states may be different. This is true for each and every circumstances. Consider two states, State A and State B. Though the two states may appear to have the same income, but they may not have the same public facilities. In the same way, if two states may have same public facilities, they may be different in income. So how to compare them? What should be the criteria? A set of criteria is required. You cannot compare two states only on income or only on public facilities. You have to take a set of criteria on which you can compare two or more states. Right? Now, so how do we compare different things? Which aspects do we use to compare them? Let us look at the students in the class itself. Students, I am reading from the textbook, second paragraph. Please be attentive in this. How do we compare different students? Suppose I as a teacher have to compare different students. I can compare them on the basis of their intelligence, on the basis of their heights, on the basis of their gender, on the basis of their subject abilities, right? So these are the different criteria by which I can differentiate all of the students. The healthiest student might not be the most studious one. जरूरी नहीं है कि जो सबसे हट्टा कट्टा पहलवान है स्टूडेंट्स में वो पढ़ाई में भी अच्छा हो और जो पढ़ाई में अच्छा हो वो हेल्दीएस्ट हो, ये भी जरूरी नहीं है. So how do we compare students? The criteria we use depends on the purpose of comparison. Suppose हमें अगर sports team select करनी है तो हम healthy और expert students जो sports में ज्यादा physically ज्यादा involved हो उनको मैं choose करूंगा. अगर मुझे English debate के लिए students को choose करना है तो जो students के English speaking skills अच्छे हैं जो स्टूडेंट्स के इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छे उनको मैं सिलेक्ट करूंगा. अ डिबेट टीम, म्यूजिक टीम, पिकनिक टीम, सो वी नीड क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. The characteristics should be friendliness, spirit of cooperation, creativity or marks seeking. Now this is true for comparing countries also. Now in comparing countries, the main criteria is of course income. Now the thing is there are two aspects of income. Income has two aspects. One is total income. And another is average income. Now average income is also called per capita income.
right? Now there is a formula to calculate the average income. Average income means national income divided by total population. So according to this formula, सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और इंडिया का टोटल इनकम से 16,500 करोड़ है, तो करोड़ के साथ करोड़ कट हो गया, 16,500 को आप 130 से डिवाइड करेंगे, यू गेट द पर कैपिटा इनकम. इसमें एवरेज इनकम के अंदर पर पर्सन इनकम कितना है. अभी सपोज मान लीजिए मेरे घर पे 6 लोग रहते हैं, मेरे फैमिली में 6 लोग रहते हैं, राइट. अब सपोज मेरा इनकम साल का 6 लाख रुपीस हो, तो पर पर्सन इनकम कितना हुआ, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 6, पर पर्सन इनकम हुआ 1 लाख रुपीस, राइट. आई कैन नॉट से कि मेरे को 6 लाख रुपए का सुख मिल रहा है, नहीं, हर एक पर्सन को 1 लाख रुपए का सुख. So this is how the concept of per capita income works. It is not necessary that how many people are earning how much. It is also dependent on the factor of dependency. आज आपके घर में सपोज पप्पा है या सपोज आपके ग्रैंडफादर है या मदर भी है, सपोज ये 3-4 लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके सामने बच्चे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे खा तो रहे हैं. So that dependency factor is also important in calculating the per capita income. So national income by total population. Now, when we are looking at this, on the next page you can see there is a average income table. On the average income table, you are given 2 countries, country A and country B. So let us look at this example, students. Example on page number 9. Now here we have country A and country B. Now both of them has a population of 5 people. यहां पे भी 5 लोग रहते हैं, यहां पे भी 5 लोग रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये 5 लोगों का जो इनकम है वो अलग अलग है. कंट्री ए में पहले इंसान का जो इनकम है 9,500, दूसरे का 10,500, थर्ड का 9,800, फोर्थ का 10,000 और फिफ्थ का 10,200. यहां पे पहले चारों लोगों का 500, 500, 500, 500 and 48,000. This table is given, right? अब इसके हिसाब से अगर हम यहां पे पर कैपिटा इनकम ढूंढेंगे तो क्या होगा. यहां पे अगर हम कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम ढूंढेंगे तो आप अगर स्टूडेंट्स ये 5 फिगर्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 50,000. आप इन 5 फिगर्स को प्लस करके देखोगे तो आंसर आएगा 50,000. अब ये 50,000 को हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे. 50,000 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर विल बी 10,000. पर कैपिटा इनकम कंट्री ए का 10,000. कंट्री बी का आप 48,000 में 500, 500, 500, 500 मतलब ये 4 बार 500 मतलब 2,000 रुपीज. 2,000 प्लस 48,000 करोगे तो अगेन ये 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000. तो इससे हमको पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन पर कैपिटा इनकम अकेला इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन नहीं हो सकता. सी, इनकम इज द मेन क्राइटेरियन. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन मेन क्राइटेरियन, नॉट द ओनली क्राइटेरियन. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स.
income is the main criterion but not the only criterion. So it is very important to see how the population is earning. आज कंट्री ए है, इसमें आप देख सकते हो कि हरेक का इनकम इट इज नियरर टू द पर कैपिटा इनकम. हरेक इंसान 10,000 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, लेकिन सबका इनकम ऑलमोस्ट 10,000 है. कंट्री बी में 4 लोग एक्सट्रीमली पुअर है और एक जो है वो अंबानी है. अब उस एक अंबानी की वजह से जो एवरेज इनकम निकल रहा है वो इन 4 लोगों से नियर नहीं, काफी दूर है. करेक्ट. अगर कोई पर्सन सिर्फ इतना डेटा देखे, अगर किसी पर्सन को ये डेटा नहीं दिखाया जाए, सिर्फ कंट्री का नेम, 5-5 लोग और ये दिखाया जाए, पर्सन क्या सोचेगा? सपोज किसी को मैं सिर्फ कंट्री ए, कंट्री बी, 5-5 लोग और ये बताऊं, आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे ये दोनों कंट्रीज इक्वल है, ये दोनों कंट्रीज में पॉपुलेशन इक्वली हैप्पी और इक्वली सर्वाइविंग होंगे. लेकिन आंसर इज फार फ्रॉम ट्रूथ, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के अंदर जहां कंट्री ए इज सर्वाइविंग टू इक्वेलिटी, कंट्री बी इज अ कंट्री ऑफ फेवर्ड रिसोर्सेस. यहां पे इसको एक्सेसिव फेवर है, इन लोगों को नहीं है. सो दिस यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ हियर. दिस इज अ कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर. 5 people are sitting on 4 benches and each of them is making space for each other. तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कंट्री ए का एग्जाम्पल है. 5 people sitting on 4 benches, उसमें everyone is making space. और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो पिक्चर है, ये कंट्री बी का पिक्चर है स्टूडेंट्स. इस पिक्चर के अंदर 1 person is occupying 4 benches and the rest 4 are sitting on 2 benches. So you can see here, ये अंबानी है और ये सारे गरीब है. सो दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू कंट्री बी, राइट. अभी स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड दिस, यू कैन राइट डाउन, यू कैन फिल इन द टेबल रिलेटेड टू दिस पर कैपिटा इनकम. पेज नंबर 9 पे ये टेबल के एंड में एवरेज आप ये नोट डाउन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिए 10,000. अब ये एवरेज इनकम का जो टेबल है इसमें आप ये नोट डाउन कर लीजिए पेज नंबर 9 पे. एंड ऑल्सो नोट डाउन दिस मच.
Now students, on page number 8, in the last paragraph, an important data is given. This can be asked in the MCQs or in the fill in the blanks. Page number 8, last paragraph. Please mark it as most important. अब स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक के अलग अलग एडिशंस हर साल छपते रहते हैं. हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो पुराना एडिशन हो. मेरे पास भी यहाँ पे 2 टेक्स्ट बुक्स है. एक पुराना एडिशन है, उसके अंदर जो फिगर्स है वो थोड़ी डिफरेंट है. तो जो नया एडिशन है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट से. एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप लेटेस्ट एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो. या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अभी उसके फिगर्स लेटेस्ट जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए. अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं जितने फिगर्स आपको नोट डाउन करवा रहा हूं वो आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में. सो इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है. जो बनाता है वर्ल्ड बैंक, राइट. अब इस वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कंट्रीज का इनकम अगर ग्रेटर देन $12,056 हो तो ये रिच कंट्री कहलाएगी. ठीक है. और अगर किसी कंट्री का इनकम लेस देन $955 हो तो ये लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी. ठीक है. अब इसमें इंडिया का इनकम कितना है? India's income, it is इंडिया का पर कैपिटा इनकम $1,820 है. तो अपने कह सकते हैं कि इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्री है. ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल मैंने यहां पे बनाया है जो आपको नोट डाउन करना है. और ये पूरा डेटा ईयर 2017 से रिलेटेड है. प्लीज नोट डाउन दिस. दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर. आपके सभी के टेक्स्ट बुक्स में ये डिटेल्स अलग अलग होगी, लेकिन 2017 का जो लेटेस्ट डिटेल है वो ये है जो आपके ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट पे जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ सीबीएसई आपको ये फिगर्स लर्न करने हैं. 2017 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज्यादा हो वो रिच कंट्री होगी. जिनका पर कैपिटा इनकम लेस देन $955 हो वो लो इनकम कंट्री होगी. और इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $1,820. तो इट इज ऑन द लोअर साइड. इट इज नियरर टू दिस फिगर बट इट इज फार अवे फ्रॉम दिस फिगर. हम रिच कंट्रीज से तो काफी नीचे है लेकिन पुअर कंट्रीज से थोड़े ऊपर है. तो इंडिया कहां पे आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री के ग्रुप में आता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो प्लीज नोट डाउन दिस.
And students, don't worry too much about purchasing the latest edition of the economics textbook for now. During the lockdown period, ऐसे आपके economics textbook में जो भी changes करवाना जरूरी होगा वो मैं आपको करवाते रहूंगा. So don't worry too much about purchasing the new textbooks right now. Now students, please turn the page. Income and other criteria. Now we are comparing states of India. कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है. अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें दिखाता हूं. दिस डेटा इज रिलेटेड टू डिफरेंट ईयर्स. तो यहाँ पे हम ईयर्स को इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ईयर्स थोड़े आगे पीछे चलते रहते हैं, बट मेनली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 4 थिंग्स. एक है पर कैपिटा इनकम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है उसमें इनकम की बात ना करे तो और कोई बात नहीं कर सकते. This is in rupees. Now, students, no need to look at your textbooks. I have written all the important data over here. Now here let us write down first of all what is the meaning of all these 4 things. See, per capita income you already know, that is total income upon total population. This you already know, per capita income. अब per capita income के हिसाब से अगर हम इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू per capita income हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट टू लिव. अकॉर्डिंग टू per capita income हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट टू लिव, क्योंकि वहां पे आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो. हरियाणा का जो इनकम अर्निंग फैसिलिटी है वो सबसे अच्छा है. लेकिन अब बाकी 3 चीजें आप देखिए. सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट.
ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इन्फेंट्स, यानी एकदम छोटे बच्चे जो पिछले 1 साल में जन्मे हो, उनका मरने का रेट कंपेयर टू 1000 बर्थ्स। सपोज 1000 बच्चे लास्ट 1 साल में पैदा हुए, तो साल के एंड में उन 1000 बच्चों में से कितने मरते हैं। तो यहां पे आप देखो तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये हरियाणा का 30 है, मतलब 30 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन आर डाइंग। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से 30 बच्चे मरते हैं। केरला में 10 मरते हैं, राइट। बिहार में 35 मरते हैं। तो बिहार तो देखने जाए तो हर चीज में पीछे है, तो बिहार को तो आप काट ही दो। कंपटीशन सिर्फ हरियाणा और केरला का ही है, बिहार तो हर चीज में पीछे है। इनकम में भी पीछे है, IMR में भी पीछे है, लिटरेसी रेट ये भी वहां पे अनपढ़ गवार लोग ज्यादा है, इसलिए लिटरेसी रेट बिहार का काफी कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे भी वहां पे कम है। सो दिस इज ऑल लेस। मेन कंपैरिजन ये 2 स्टेट्स का है। अब यहां पे अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो केरला में बड़ा हो। क्यों? क्योंकि हरियाणा में आपको पता है मेल फीमेल जेंडर इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे फीमेल चिल्ड्रन को आज भी इन्फेंटिसाइड के थ्रू मारा जाता है। तो केरला इज अ बेटर स्टेट। भले वहां पे मैं थोड़े कम पैसे कमाऊंगा, साल में देखने जाए तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ 15-17,000 पूरे साल का इनकम, लेकिन उसके सामने मैं मेरे बच्चे का हेल्थ ज्यादा अच्छा रहेगा, एजुकेशन ज्यादा अच्छा होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा होगा। तो ये तीनों स्टेट्स में अगर हम देखें तो ये 3 क्राइटेरिया में केरला इज अहेड। यही रीजन है कि केरला में लोग रहना चाहते हैं और केरला को इंडिया का मॉडल स्टेट कहा जाता है, क्योंकि भले वहां पे पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम हो, लेकिन सामने दूसरी फैसिलिटीज में केरला इतना आगे है, जिसकी वजह से लोगों का इन्फेंट्स का वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स ये केरला में हाईएस्ट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट का मतलब So you can see the difference between these two things. Literacy rate क्या होता है? Percentage of population who can read, write or understand any one language. इसके हिसाब से हम सब लोग लिटरेट हैं। Every one of us is literate, क्योंकि हम सब लोग कोई भी एक भाषा कम से कम अगर रीड, राइट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वी आर ऑल लिटरेट। लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो अलग होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 15 साल की उम्र के ऊपर के जो लोग हैं वो अगर स्कूल जा रहे हैं तो 15 साल के ऊपर के पॉपुलेशन में कितने लोग हैं और उसमें से कितने लोग स्कूल गए हैं, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। दिस इज रिलेटेड टू हाई स्कूल एजुकेशन। लिटरेसी रेट इज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस।
लिटरेसी रेट जो होता है ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो हाई स्कूल और कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टेट में नेट अटेंडेंस रेशियो का परसेंटेज लिटरेसी रेट से कम है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा लोग लेते हैं, हाई स्कूल और कॉलेज एजुकेशन उससे कम लोग लेते हैं। लेकिन केरला में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग हाई स्कूल एजुकेशन भी ले ही लेते हैं। सो दिस इज द बेस्ट स्टेट फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज फॉर कॉलेज एजुकेशन। सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। Let's go further, students. Public facilities. Now see, students, on page number 11, I am reading public facilities, fourth line. Money in your pocket cannot buy all the goods and services you may need to live well. So, income by itself is not complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. This is very true. Income cannot purchase all the facilities. For example, your money cannot buy you a pollution free environment. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पॉल्यूशन लेवल हाई होगा ही, फिर आप कितना भी पैसा कमा लो आप एनवायरनमेंट खरीद नहीं पाएंगे। अगर एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए तो आपको क्लीनर सिटी में रहना ही पड़ेगा, भले वहां पे इनकम थोड़ा कम हो। Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. Students, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोविड-19 से बचने के लिए पूरी कम्युनिटी जब तक प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं ले सकती तब तक कोई भी सेफ नहीं है। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट। Actually, for many of the important things, the best way, also the cheapest way, is to provide the goods and services collectively. आप ही सोचिए, आपके सोसाइटी में हर एक घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना जरूरी है कि पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना जरूरी है। आप सब नेबर्स हैं, नेबर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, सबका अपना नेम एंड एड्रेस सबका अपने पास है, लेकिन सोसाइटी के बाहर के लोगों से खतरा होता है। तो इट इज बेटर टू कीप अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर द सोसाइटी देन टू कीप देम फॉर एवरी इंडिविजुअल हाउस। सो इट इज नेसेसरी कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड करे। अब इसमें मेन चीज क्या है, केरला क्यों आगे है? क्योंकि केरला में जो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे गुजरात के प्राइवेट स्कूल से बेटर है। Yes, again I am repeating the fact.
Kerala has a good public education compared to the public education of the other states. गुजरात में आप म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स में जाओ, म्यूनिसिपैलिटी शाला, उनमें टीचर्स 2-3 महीने तक स्कूल में भी नहीं घुसते हैं, क्लास में भी नहीं घुसते। केरला में ये हमारे प्राइवेट एजुकेशन जैसा होता है वहां का पब्लिक एजुकेशन। टोटली इलिटरेट पेरेंट्स हो ना, टोटली अनएजुकेटेड इलिटरेट पुअर पेरेंट्स हो ना, उनका बच्चा जाएगा ना, उसको भी अपने अहमदाबाद के प्राइवेट स्कूल जैसा एजुकेशन मिलेगा, वो भी मुफ्त में केरला में। दैट इज व्हाई केरला इतना प्रोग्रेसिव है। So many of you are actually able to study because many other children also want to study, and because many children want to study, the government is opening more schools for them to study. So this is totally opposite from the environment in Bihar. बिहार के जो लोग हैं, बिहार में क्या है, ज्यादातर गुंडा राज चलता है। गुंडा राज में क्या होता है, ज्यादातर वो चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे ज्यादा पढ़ाई करें। तो अगर लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करने नहीं भेजेंगे तो जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है उसके लिए भी स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट भी स्कूल्स नहीं बनाएगी। सीधी बात है, जो चीज की नीड होगी गवर्नमेंट वो चीज ज्यादा करेगी। आज अगर आपके सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नीड होगी तो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा फोकस करेगी। अगर आपके सिटी में स्कूल गोइंग बच्चे ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा खोलेगी। लेकिन बिहार के लोग पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट भी स्कूल्स ज्यादा नहीं खोलती। इन द सेम वे केरला में लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। दैट इज व्हाई इन केरला देयर इज अ हाई लिटरेसी रेट बिकॉज देयर आर मोर स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। In many areas, children, particularly girls, are not able to achieve the secondary level schooling because government or society is not providing them the facilities. Kerala has a low mortality rate. ये infant mortality rate केरला में क्यों रेट है, लो है? क्योंकि वहां पे बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी है। कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, यानी राशन शॉप अच्छा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में सबसे बेस्ट है, राशन की दुकानें बहुत अच्छे से चलती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन दीज स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू अनदर पॉइंट इन द चैप्टर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। So let's go further, students. Now, on page number 13, next thing that is given is BMI। अब ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन इसमें से सिर्फ BMI आपको पता होना चाहिए। BMI क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड, लेकिन ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, MCQ में भी पूछ सकते हैं। BMI का एक फॉर्मूला होता है। BMI का मतलब होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में वेट जो है ये किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट जो है ये मीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, सपोज person's weight is 60 kg and height
हाइट ये आपको मेजरिंग टेप से सेंटीमीटर्स में लेना पड़ेगा. इन सेंटीमीटर इससे 180 सेंटीमीटर्स. ओके. और 1.8 मीटर्स. 180 सेंटीमीटर्स तो 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर होता है. राइट स्टूडेंट्स. 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर. तो अगर हाइट इन सेंटीमीटर 180 है तो मतलब 1.8 मीटर हाइट हुई. तो इस हिसाब से उस पर्सन का बीएमआई क्या होगा स्टूडेंट्स? बीएमआई होगा 60 अपॉन 1.8 स्क्वायर. सो 60 अपॉन 1.8 स्क्वायर अपने कैलकुलेट करते हैं. This is 3.24 and 60 divided by 3.24. So this is coming to 18.5. करेक्ट. अब स्टूडेंट्स अगर ये लेस देन 18.5 हो तो पर्सन इज अंडर नरिश्ड. और अगर ये ग्रेटर देन 25 हो तो पर्सन इज ओबेस. और अगर ये 18.5 से 25 तक हो तो पर्सन इज हेल्दी. ठीक है. तो आप अपने घर पे मम्मी पापा दादा दादी आपका आपकी सिस्टर्स का इन सबका आप बीएमआई नोट कर सकते हो. ठीक है. बीएमआई की फॉर्मूला है आप अपना वेट और उसको हाइट को आप मेजरिंग टेप से सेंटीमीटर में मेजर कीजिए और उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाय 100 करके. और बीएमआई की फॉर्मूला में वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. ठीक है. ये 1.8 इंटू 1.8 मैंने नीचे किया है एंड 60 डिवाइडेड बाय दिस गिव्स यू द बीएमआई. अगर आपका बीएमआई 18.5 आता है तो हेल्दी है. 18.5 से अगर काफी कम आता है तो आप अंडर नरिश्ड हो. अंडर नरिश्ड मतलब आपका खाना पीना थोड़ा कम है या फिर शायद आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो. और अगर ग्रेटर देन 25 है तो आप ओबेज हो. ओबेज मतलब ओवरवेट. इसमें आपको थोड़ा न्यूट्रिशन पे कंट्रोल करना चाहिए, डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए. अगर आपका वेट 18.5 से 25 के बीच में है तो यू आर हेल्दी. Please note down this. अभी ये बीएमआई जहां दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसके बाजू में एक छोटा बॉक्स दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, द HDR। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है?
ये published by United Nations Development Program. UNDP. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये एवरी ईयर यूएनडीपी में होता है and it is comparing 189 countries. In 2019. ये लेटेस्ट रिपोर्ट है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें 189 कंट्रीज को कंपेयर किया गया है 2019 में। और इसमें इंडिया एंड इट्स नेबर्स की बात करें तो इसमें इंडिया एंड इट्स नेबर्स में आप नीचे अगर ये रिपोर्ट देखोगे तो इसमें आप देखेंगे कि HDI जो है इंडिया का, लास्ट कॉलम देखिए, HDI रैंक दिया हुआ है, ये इंडिया का 130 है आउट ऑफ 189। तो इंडिया का जो HDI है इट इज 130 आउट ऑफ 189, तो हम काफी पीछे हैं। अब इंडिया के सामने श्रीलंका का जो HDI है वो काफी बेटर है कंपेयर टू इंडिया, इट इज 76। सो श्रीलंका इज लॉट बेटर देन इंडिया। इसके अलावा अगर आप इनका इनकम देखो तो इंडिया का जो इनकम है, इनकम की बात करें तो इंडिया का जो इनकम है वो भी श्रीलंका से काफी कम है। दिस इज गिवन इन डॉलर्स। तो इंडिया का जो इनकम है इट इज 6,353 और श्रीलंका का जो है इट इज 11,326। So you can see India's HDI is also less. Sri Lanka's HDI is lot better. ये रैंक है, दिस इज HDI रैंक। ये जो HDI है ये रैंक है, इंडिया का रैंक और श्रीलंका का रैंक। करेक्ट? तो इंडिया का रैंक काफी पीछे है, श्रीलंका का काफी आगे है। इसके अलावा जो ये टेबल है इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ जो ये फिगर्स है ये रिलेवेंट है, बाकी के फिगर्स सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है। राइट? सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल बिकॉज वो एडवांस स्टडीज के लिए है। अभी के लिए आपका जो नॉलेज है वो इतना आपको याद रखना जरूरी है। टेबल अगर आप ज्यादा और डिटेल में समझना चाहते हो तो यू कैन रीड आउट द टेबल, उसमें भी लिटरेसी रेट ही दिया हुआ है। एंड अदर देन दैट देयर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, मतलब किसी कंट्री में अगर आप पैदा होते हो तो आप कितनी लाइफ एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। आप ये इतना डेटा नोट डाउन कर दीजिए। Students, now we are coming to the last part of the chapter, that is sustainability of development. तो sustainability of development के अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें दी हुई है, एक है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। आप स्टूडेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो कि आज से 30-40 साल पहले जो
अहमदाबाद के नीचे बोर का पानी होता है, बोर आपको पता है, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी, ये अहमदाबाद में अराउंड 45-50 मीटर्स डिगिंग करते थे तो पानी मिलता था। आज के टाइम पे ये 300 मीटर्स पे मिलता है। डेट मीन्स हम उस पानी का ओवर यूज कर रहे हैं। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स, हर एक फ्लैट, हर एक सोसाइटी में बोरवेल्स है, जबकि बोरवेल्स सिर्फ होने चाहिए फार्मर्स के फील्ड्स में। लेकिन फिर भी सोसाइटीज, क्योंकि इंडिया में लॉज इतने ज्यादा नहीं बने हैं इस चीज पे, इसलिए सोसाइटीज इस बोरवेल के पानी का ओवर यूज कर रही है और उसका आप रिजल्ट देख रहे हो कि इंडिया के मैक्सिमम सिटीज के नीचे से बोर का पानी खत्म हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यह है कि देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी वर्ड मीन्स कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तभी होगी जब हम रिसोर्सेज को बचा बचा के यूज करेंगे। द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, दैट मीन्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दे शुड नॉट बी ओवर यूज्ड। ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी ओवर यूज्ड। इन द सेम वे एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के रिजर्व स्टूडेंट्स इतने कम हो चुके हैं कि प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 30 इयर्स दे विल बी एग्जॉस्टेड। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि सोलर पावर्ड सेलरी से हम, सोलर पावर्ड सेल से हम सब कुछ चला लेंगे, सोलर कार होती है, सोलर प्लेन्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक चीज कि जितने पूरे वर्ल्ड में थर्मल प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स मतलब कोल या पेट्रोलियम से हीट एनर्जी जनरेट करने वाले, उतनी कैपेसिटी के हमारे पास सोलर पावर्ड एनर्जी, विंड पावर्ड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है। और दूसरी चीज, आप सोचिए आज के टाइम पे आप कार चलाते हो तो पेट्रोल पे या सीएनजी इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दैट यू नो इन साइंस फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों पे जो गाड़ियां चलती है 200 की स्पीड पे चलती है स्टूडेंट्स। अब उसके सामने सोलर पावर की जो कार है वो हार्डली 50 या 60 की स्पीड पे चलती है। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, ये किस तरह का डेवलपमेंट होगा। मतलब एक्सेसिव रिसर्च विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके सामने क्या हम ये नहीं कर सकते कि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम करें, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी पेट्रोल डीजल यूज करने का मौका मिले। सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एम्स एट दीज इश्यूज एंड दीज आर वेरी वाइटल फॉर डेवलपमेंट। आज के टाइम पे हम प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को फुलफिल करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब फ्यूचर जनरेशन खुद बोलेगी कि यार हमारे बाप दादा सब कुछ खा पी के बैठे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। द फ्यूचर जनरेशन विल से दिस अबाउट अस कि यार तुम लोग तो सब एक्टिवा और उसमें घूम के आए, हम लोग के लिए बैलगाड़ी छोड़ दिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा बचा के चीजों को यूज करें, बिकॉज अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड, but it does not have resources for anyone's greed. आप अगर ग्रीडी बन के रिसोर्सेज यूज करते जाओगे तो अर्थ के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नीड के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करोगे तो अर्थ हैज इनफ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। सो प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, एंड विथ दिस लाइन वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, and you can write down the question answers of this chapter from the notes, right? In the next lecture we will be starting with geography chapter 1 resources. So till then, goodbye students.